આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પીડ ન્યૂઝ 17 હર હંમેશ સત્યની સાથે. જોવા માટે સર્ચ કરો speednews17.com તેમજ તમામ સોશિયલ સાઇટ પર. અમદાવાદ કેન્દ્રીય મંત્રી દ્વારા કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું વિમોચન. અમદાવાદ ખાતે વિનોદ ચૌહાણ દ્વારા લખાયેલ કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું કેન્દ્રીય મંત્રી અર્જુનરામ મેઘવાલ દ્વારા વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. લેખક વિનોદ ચૌહાણ દ્વારા લખાયેલ કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તકનું કેન્દ્રીય સંસદીય બાબતો અને સંસ્કૃતિ રાજ્યમંત્રી અર્જુનરામ મેઘવાલ અને લોકપ્રિય સાંસદ ડોક્ટર કિરીટભાઈ સોલંકીના હસ્તે અમદાવાદ એનેક્સી ખાતે વિમોચન કરવામાં આવ્યું હતું. લેખક વિનોદ ચૌહાણ દ્વારા લિખિત કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી પુસ્તક સરસ મજાનું પુસ્તક છે. આ પુસ્તકનો અર્થ મહાનાયક નરેન્દ્ર મોદીની થોડી સાંભળેલી બાબતોનું પુષ્પગુચ્છ છે. આ પુસ્તકનો અર્થ તે વ્યક્તિ વિશે થોડું નિષ્પક્ષ વિશ્લેષણ છે જેમણે પોતાનું ઘર અને પરિવાર દેશની સેવા માટે છોડી દીધું હતું. આ પુસ્તકમાં નરેન્દ્ર મોદી વિશે માહિતી કે જેમના પર ક્યારેય એક રૂપિયાના ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લાગ્યો નથી, જેમનું આખું જીવન નિષ્કલંક છે, બેદાગ છે. આ પુસ્તક એ નરેન્દ્ર મોદીના જીવનની થોડી ઝલક આપે છે, જેમના કપડાં, વાળ, દાઢી, મૌન રહેવાની અને બોલવાની વાત પર પણ લોકોમાં ચર્ચા થાય છે. આ પુસ્તક એવા રાજકારણી વિશે કંઈક કહે છે જેમણે ઘણા બધા મોટા અને ભ્રષ્ટ નેતાઓ, રાષ્ટ્રવાદીઓ, રાષ્ટ્રવિરોધીઓ, આતંકવાદીઓ, નક્સલવાદીઓ અને જાતિવાદીઓને ખુલ્લા કર્યા અને સજા અપાવી. પુસ્તકમાં ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવા માટે રાત દિવસ નરેન્દ્ર મોદીના સંઘર્ષની વાર્તા છે. જેને દેશ સાંભળવા માંગે છે, એમને પ્રેમ કરે છે. આ પુસ્તક નરેન્દ્ર મોદીની અનટોલ્ડ, ન સાંભળેલી વાર્તાઓનો એક ભાગ છે, જેમણે ભારતમાંથી ભ્રષ્ટાચારના મૂળને ઉખેડીને દેશની રાજકીય સફાઈ કરી છે. લેખક વિનોદ ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ આ પુસ્તકનો અર્થ દેશના કરોડો સામાન્ય નાગરિકો વતી નરેન્દ્ર મોદીએ આપેલ આભારનું ફૂલ છે. આ પુસ્તક કલ્પવૃક્ષ નરેન્દ્ર મોદી ભારતના તે લોકોને જગાડવાનો એક નમ્ર પ્રયાસ છે જે દેશમાં ચાલી રહેલા મહામંથન અને મહાનિર્માણના આ ઐતિહાસિક સમયગાળામાં પણ મૂંગા દર્શક બની રહ્યા છે. વિશ્વગુરુ બનવા માટે ભારત પોતાનું નેતૃત્વ લઈ રહ્યું છે. આવા સમયમાં દરેક ભારતીયને મારું શું છે અને મારા માટે શું છે તેની માનસિકતામાંથી બહાર નીકળવાની જરૂર છે. આ વિમોચન પ્રસંગે અમદાવાદના મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કોર્પોરેટર શ્રી પ્રદીપભાઈ દવે, શ્રી મુકેશભાઈ મિસ્ત્રી, મહેસાણા ઓશો મનન કોમ્યુના ટ્રસ્ટી શ્રી નરેશભાઈ પટેલ, નિમા વિદ્યાલય સંકુલ અમદાવાદના આચાર્ય શ્રી સહદેવજી સોનગ્રા અને સ્વાભિમાન ગ્રુપના પદાધિકારીઓ શ્રી જગદીશ સોલંકી, શ્રી વિવેક ભોજક, શ્રી સંકેત મિસ્ત્રી, શ્રી નારાયણભાઈ ચૌહાણ, શ્રી પ્રકાશ ચૌહાણ, શ્રી જયેશભાઈ સોલંકી, શ્રી અરવિંદભાઈ પાઢિયાર સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પુસ્તક એમેઝોન, ફ્લિપકાર્ટ અને કિન્ડલ સહિત તમામ પ્લેટફોર્મ પર આ પુસ્તક ઓનલાइन उपलब्ध છે. 36 लक्षणा पुरुष वहाँ बलिदान देता है तो सरोवर में पानी आता है. वो धौलका के पास रनोड़ा गांव का बस्ती था, बुनकर परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति था और वो पाटन आके स्वेच्छा से उन्होंने बलिदान दिया और पूरा पानी आ गया. तो ये एक 1000 साल पहले की घटना है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भी ये पानी पिया होगा. मुझे तो ऐसा लगता है कि उस वक्त राजा ने भी उसमें से पानी पिया होगा. पशु पक्षी सभी लोगों ने, पूरी प्रकृति ने उस पानी को लिया और ऐसे पुरुष को वंदन करने के लिए मेघवाल जी आज यहाँ पधारे हैं. कल हमारा पाटन का कार्यक्रम है. पाटन में जो सहस्त्रलिंग तालाब बना था उसका भी हमने बोला कि उसको भी एक संस्कृति मंत्रालय की ओर से उसको पुनर्जीवित किया जाए और माया ने पाटन में जहाँ ये निश्चय किया था उसको एक जगह है
वहाँ राजा के साथ बैठकर उनकी जो बात हुई थी, वहाँ बलिदान संकल्प स्थली के नाम से उसको उजागर किया जाए। आज वो आए हैं। आज भाई विनोद भाई चौहान जी ने हमें बोला कि जब मेघवाल जी आ रहे हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, इनके बारे में उन्होंने जो बताया, विश्व के सबसे बड़े नेता है और आज भारत के लोगों की अगर किसी में भी पूर्ण आस्था है तो नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी पर आस्था है मित्रों। और उनके बारे में उन्होंने जो पुस्तक काज किया, उसका विमोचन मेघवाल जी के कर कमलों से आज हम करने जा रहे हैं। मैं मेघवाल जी से मैं विनती करूंगा कि वो इस बात में आगे बात करें। आप सभी का इतनी बड़ी संख्या में आप आए, उसके लिए भी मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेट किया या लेट नहीं, काम शुरू कर दिया था उन्होंने इस काम को। आपने देखा होगा वीर मेघ माया के स्थल का विकास लगातार चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ऐसे अभी भी कुछ ऐसे व्यक्ति रह गए हैं जिनको वो स्थान मिलना चाहिए ना। अब क्या हम आजादी की बात करें तो सरदार पटेल साहब को वो स्थान नहीं मिलना चाहिए? ये प्रधानमंत्री आने के बाद वो स्थान मिल रहे हैं ना आपके। मैं थोड़ी जोड़ता हूँ, एक मिनट मैं बोल देता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर साहब को वो स्थान नहीं मिलना चाहिए जो मिलना चाहिए। कांग्रेस ने उसको भुला दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जी का सोच है कि जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया उनको इतिहास के पन्नों में वैसे ही दर्ज करो जितना उनका बड़ा योगदान था। और उन्होंने नहीं वो सोच थी भाई, वहाँ गए थे तभी तो उनकी कल्पना है, तभी तो हमें भेजता है भाई। तो बात करो भैया, मैं आपसे बताता हूँ कि जो गुजरात सरकार ने जो 15 अगस्त और 26 जनवरी डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में मनाने की जो प्रथा हुई, वो जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई थे तब से शुरू हुई। और पहली बार 2003 में वो पाटन गए थे और पहली बार 15 अगस्त को वो पाटन गए थे और गए तब उसका जो फ्लैग होस्टिंग करने के पहले उन्होंने बोला कि मुझे वेग माया के मंदिर जाना है। और वो वहां गए, वहां अपना मत्था टेका और उसके बाद वहां मेमोरियल बनाने के लिए 1,85,00,000 रुपीस का उन्होंने योगदान दिया था सरकार की ओर से। इसके बाद मैं ये जो वीर मेघमाया विश्व मेमोरियल फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर का मैं चेयरमैन हूँ। फिर बाद में अपने विजय भाई ने 3 करोड़ का योगदान दिया और हमने 4 करोड़ 35 लाख और मांगे। कोरोना के काल में एक भी पैसा काटे हुए हमारी सरकार ने दिया है, तो उन्होंने कोई कम किया है ऐसी बात नहीं है। सर, दूसरा प्रश्न ये कि प्रधानमंत्री अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री जिस आवाज करे उसको राष्ट्रीय म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है जिस वहाँ पे जहाँ जिस प्रकार में रहे वहाँ तक अभी तक का राष्ट्रीय म्यूजियम वहाँ नहीं बनाया गया। तो ये क्या वो भेदभाव है, क्या माना जाएगा? वो किसने नहीं बनाया भाई? आप तो वो बात करो ना जिन्होंने नहीं बनाया, उनकी बात करो ना। सरदार पटेल जी को तो 2 स्थान ये दे रहे हैं, ऐसा तो किसी ने दिया ही नहीं है। उस समय उनको देना चाहिए था, तो क्या अब वो हो सकेगा? नहीं, हम कितना बड़ा स्थान दे रहे हैं तो केवड़िया में वो कम स्थान है क्या? बाकी म्यूजियम की बात भी होगी तो भी होगा। और कोई सरदार पटेल की धरोहर और कोई सरदार नहीं सुनिए और कोई सरदार पटेल की धरोहर का विकास करना होगा तो हम करेंगे। गुजरात के जो मीडिया कर्मी हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं और सबको जय जय गरवी गुजरात का संबोधन करते हुए जय जय राजस्थान मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देखिए, विनोद चौहान साहब ने पुस्तक लिखी, अभी जिक्र कर रहे थे। मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री हूँ, इसलिए मुझे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य याद आ गया। जब अभी प्रधानमंत्री जी, जब हमारा मानसून सत्र शुरू हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से और राज्यसभा में चेयरमैन होते हैं वो उपराष्ट्रपति वेंकैया जी से, दोनों से परमिशन ली कि मैंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, कुछ उसमें चेंजेस किए हैं, तो कुछ नए मंत्री बने, तो उनका लोकसभा में और राज्यसभा में परिचय कराना। तो ओम बिरला जी ने भी अनुमति दी कि आप इस समय परिचय करा सकते हैं, टाइम टेक से।
और ऐसे राज्यसभा में भी चेयरमैन साहब ने टाइम तय किया कि आप इस समय परिचय करा सकते हैं। और 1947 से जब से अंतरिम सरकार बनी और 1952 के बाद जब आम चुनाव के बाद हमारी स्थायी सरकार बनी है भारत में, तब से ही जो प्रधानमंत्री होता है वो नए मंत्रियों का परिचय संसद से कराता है। जब देश आजाद हुआ और चुनाव हुआ उसके बीच में 47 से 52 के बीच का जो कालखंड था, उस समय भी संसद थी कांस्टिट्यूंट असेंबली, उसको संसद घोषित कर दिया। तो कांस्टिट्यूंट असेंबली में परिचय कराते थे, ये नए मंत्री बने। 52 से लेकर के चाहे जितने भी प्रधानमंत्री रहे सबने परिचय कराया। इस बार इन्होंने जो ये राहुल गांधी जी की टीम, आप कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने तय कर रखा है कि हमें तो नरेंद्र मोदी जी को गालियां देनी है, जैसे इन्होंने जिक्र किया, अपमानित करना है, ऐसा भाव रख करके आए। और पहली बार संसदीय ये परंपराओं को तोड़ते हुए इन मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया। तो प्रधानमंत्री जी खड़े थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, हल्ला हो रहा था। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाई मैंने इतने बड़ी संख्या में ओबीसी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, आदिवासी समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, दलित समाज के लोगों को मंत्री बनाया है, महिला को उतनी बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया है, तो क्या आपको ये पसंद नहीं है कि इनका परिचय संसद में हो? तो भी नहीं सुना जी। तो ये जो अभी विनोद जी भाव रख रहे थे कि 2019 में जनता ने मैंडेट दिया इसलिए प्रधानमंत्री है ना, किसी कृपा से थोड़ी है भाई। लेकिन एक ऐसा परिवार है या ऐसे सोच के कुछ लोग हैं इस देश में कि प्रधानमंत्री का पद तो गांधी नेहरू परिवार के लिए रिजर्व है। गांधी जी का नाम वो यूज करते हैं लेकिन उनके पीछे गांधी लगता है और नेहरू, तो हमारे लिए रिजर्व है ये पद। इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गए? तो उनको लगता है कि विरोध करो हर तरह से। अब इतनी अच्छी संसदीय परंपरा जिसको हर प्रधानमंत्री ने निभाया, हर स्पीकर ने, चेयरमैन राज्यसभा ने परमिशन दी, सब सदस्य सत्ता पक्ष के और विपक्ष के दोनों मिलकर के ताली बजाते हैं जब नया मंत्री का परिचय होता है। ये परंपरा, इस परंपरा को भी इन्होंने पहली बार तोड़ा। तो आप देख सकते हो किस तरह का विपक्ष का रवैया और ऐसे कुछ चीजों का उजागर इन्होंने किया। एक तो मुझे ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री होने के नाते मैंने संसद की एक बात आपको कही, दूसरी संस्कृति मंत्रालय के नाते जिसका जिक्र डॉक्टर किरीट भाई अभी कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी का एक स्पष्ट सोच है आजादी का अमृत महोत्सव। ये देश अपनी आजादी का 75 साल मना रहा है, तो प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 से या साबरमती आश्रम से ही आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की और 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए 15 अगस्त 2047 तक इन्होंने अमृत कालखंड इसको घोषित किया कि हम 25 साल में इस देश के लिए अच्छा सोचें, अच्छा प्रयास करें, अच्छे थॉट लाएं और 2047 तक 2047 तक ये देश निश्चित रूप से विश्व का बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रॉस्परस, बहुत संपन्न देश बन जाए, ये कल्पना करके उन्होंने कहा ये अमृत काल। अमृत जब निकलता है जब मंथन होता है। हम 75 साल तक कहां तक चले, कहां हमारी कमियां रह गई, उनको आगे 25 साल में कैसे पूरी करें और देश को तेजी से आगे बढ़ाएं, यही इन्होंने अमृत कालखंड का एक शब्द यूज किया था। तो मैं उसी अमृत कालखंड में यहाँ आया हुआ हूँ और उनका एक और भी हमें संस्कृति मंत्रालय में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया था कि इस देश में कुछ अनसंग हीरोज रह गए। अनसंग हीरोज वो हीरोज हैं जिन्होंने आजादी के लिए भी काम किया, आजादी से पहले समाज रचना में भी काम किया। वो अनसंग हीरो जिन्होंने गाया नहीं, उसी श्रृंखला का एक अनसंग हीरो हमारे वीर मेघमाया, जो एक वीकर सेक्शन से रहे होंगे, कोई ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिस
तरह का उनका बलिदान है, उस तरह की वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है जैसी होनी चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री जी का ही सोच है कि ऐसे अनसंग हीरो जिन्होंने समाज रचना में और देश निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको याद करना चाहिए, इतिहास के पन्नों में वो महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसी श्रृंखला में मैं कल पाटन भी जा रहा हूँ। वीर मेघमाया का जो बलिदान स्थल है उसको देखने भी जा रहा हूँ। हमारी संस्कृति मंत्रालय से हमारी एक स्कीम है म्यूजियम ग्रांट फंड, उसमें हम क्या उनका एक म्यूजियम बना सकते हैं। उसमें भी जो संस्थाएं वहाँ काम करती है, किरीट भाई सोलंकी जी से और उन संस्थाओं से चर्चा करके इनसे प्रपोजल लेंगे और संस्कृति मंत्रालय से उसको भी मंजूर कराने का प्रयास करेंगे। इसी सिलसिले में आज मैं आपके बीच में आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।